हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के PTG POTD डे 56 को। तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार हॉपस्कॉच। अगर आपने क्वेश्चन ये कर रखा है, आप इसको समझ पा रहे हो, तो कोड कर पा रहे हो, देन वेल एंड गुड। नहीं तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसमें। तो आज के क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है यार। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसे। आकृति, अवंतिका एंड महक आर प्लेइंग 2D hopscotch. The arena is in the form of n cross and 2D matrix, but the position of the cells is slightly modified as shown below. ठीक है, तो एक्चुअल रोज और कॉलम जो कन्वेंशनल वे में होते हैं वो प्रेजेंट ना होके कुछ अप एंड डाउन है, राइट? ठीक है, ओके। सो महक स्टार्ट्स द गेम फ्रॉम टाइल I, J, while Avantika and Akriti director. Okay, in each turn Mahek will collect all the stones present one or two steps away from where she is standing. ठीक है, महक एक जगह खड़ी है I, J पे एंड शी हैज टू कलेक्ट दी स्टोन्स which is present at one step ahead of her or two step ahead of her. So Avantika can direct Mahek one step at a time and Akriti can direct Mahek two step at a time. Okay, so Mahek is starting a game starting at I, J, and there are two girls which are directing her, Avantika and Akriti. Right? Avantika can direct Mahek to one step and Akriti can direct Mahek for the two steps. Okay, if the direct if the director TY is known to you as TY is zero, then uh, TY is zero being Avantika and one being Akriti. Okay, find the number of stones Mahek will collect. ठीक है यार, ये एक बार इसका इनपुट आउटपुट पढ़ लेते हैं। सो मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, टी वाई इक्वल्स टू जीरो है, मतलब अवंतिका विल बी द डायरेक्टर एंड दैट मीन्स महक कैन ओनली मूव वन स्टेप एट अ टाइम, राइट, इन एनी डायरेक्शन। सो इफ शी इज स्टैंडिंग एट 1,1 देन मूविंग वन स्टेप अहेड मीन्स, तो इस तरह इनपुट को कॉपी करके पेंट पे ले चलते हैं और वो हॉपस्कॉच वाले स्ट्रक्चर को भी। Okay, yeah. So we have the first test case as well as the structure, the matrix where the steps has to be followed, right? So let us take so 1,1. So Mehak is standing at this point, right? 1,1, and Avantika is the director, and it can move only one step. So I can see that Mehak can move in this direction, one step, one step, one step, step, and one step. So like total 6 steps is possible, right? But since it's the matrix is in a zigzag structure, so possibility ये है कि वो अगर 1,2 से start करे, right, then the coordinates which she has moved one step away may be different, right? तो हम पहले यार 1,1 के लिए coordinates निकाल ले क्या? इससे पहले थोड़ा constraint और time complexity भी 10 power 6 है, right? and expected is O of 1. ठीक है, मेरे को लग भी रहा तो O of 1 में होगा, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग हियर कि महक जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव, राइट? सो वी जस्ट हैव टू चेक इफ दिस 6 पॉइंट लाई इन दिस मैट्रिक्स, राइट? तो हमें उसका ये उठाना है, जैसे कि 1,1 है तो वो 0,1 मूव कर रही है, 0,1 पे इंटीजर वैल्यू 9 है, राइट? सिमिलरली इन इन छो जगह पे जो एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है, दैट इज 965,812, उनका सम रिटर्न कराना है, राइट? तो हम अगर पता कर ले यार, लेट्स से I, J, राइट, मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, have 1,1 and I can move to 0,1. I can move 2. I can move 2. I can 1. I can move 0, and then the last point is 1,0. So if I consider ये वही ग्राफ वाला dx और dy आर में बनाना होगा यार, मेरे को लग रहा है। So if this 1,1 is I, j, then what I can say about the rest of the 6 points? So this was 1, right? So 1,1 becoming a 0,1, that is I minus 1, j, right? And if we talk about this point, that this will be I, j plus 1. Let's talk about this point, I, j minus 1. Let's talk about this one, it will be I plus 1, j plus 1. It will be I plus 1, j. The 1 becoming 2, that is I plus 1, and the 1 remains 1. So I plus 1, j. And this was 2, 0, right? So this will be I plus 1, j minus 1. तो दीज आर द 6 कोऑर्डिनेट्स। तो हमें बस यही चेक करना है कि इन 6 कोऑर्डिनेट्स पे आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, राइट? आउट ऑफ बाउंड कैसे चेक कर लेंगे कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, राइट? एक्स जो है वो लेस देन एन हो, लाइक नंबर ऑफ रोज, एंड वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
and y should be less than equals to less than m. So if that's the case, if if that's the case, then we will just take the matrix value there and we will pass a some variable, right? But since it's zigzag structure, right, then I have to check for this point also, 1 comma 2. And 1 comma 2 can move in what all directions? It can move to 0 comma 2, right? It can move to 0 comma 2, 0 comma 3, 1 comma 3, 2 comma 2, 1 comma 1 and 0 comma 1. तो यार उसके लिए भी तुरंत से सॉल्व कर लेते हैं. So we have where to write it. So let's write it here. If we have 1 comma 2, right? So it can move in direction 0 comma 2. It can move to the direction 0 comma 3. Can move into direction of 1 comma 3. The other direction is what? 2 comma 2. The other one is 1 comma 1. And the last one is 0 comma 1. So let's define the coordinates now. If it changes, like I think it will change because the structure is zigzag, right? So let's define it. So if this 1 comma 2 is I comma j, then what we can write about 0 comma 3? It will be I minus 1 comma j plus 1, right? What we can write about 0 comma 2? It will be I minus 1 comma j, right? And for this one, I minus 1 comma j minus 1, right? For this was what? 1 comma 1, right? It was 1 comma 1. For 1 comma 1, I can write I comma j minus 1. आप समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है कि दिस इज आई कॉमा जे, राइट? आई इज 1 एंड यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट 1 है, तो मैंने आई को आई छोड़ दिया. एंड हियर जे इज 2 विच इज कन्वर्टेड टू 1, सो दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1. सेम यार वो ग्राफ में जो डी एक्स डी वाई हम डी एफ एस ट्रावर्सल के लिए करते थे, बट सिंस दैट वाज डी एफ एस एंड हमें यहाँ बस एक बार ही मूव करना है, वी डोंट हैव टू कीप ऑन रिकर्व फॉर इट. तो ठीक है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? आई प्लस 1 कॉमा जे, राइट? तो डिफर कर रहा है क्या यार? तो अगर मैं अप डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है आई माइनस 1 कॉमा जे, ये तो सेम है. एंड इफ यू आर मूविंग इन दिस what to say, this direction, right? So it's I comma j minus 1 in this case and I minus 1 comma, okay. तो difference तो आ रहा है यार. So we have to make two arrays, like for dx it's the 0kth, right? And let's say it's the odd array. तो हमारे पास यार तीन चार array बनाने पड़ेंगे हमें, राइट? तो ठीक है. तो हम ये इवन वाला केस था, राइट? यहाँ पे j का वैल्यू इवन था और यहाँ पे j का वैल्यू ऑड था, लाइक दी y कोऑर्डिनेट. तो लेट्स मेक अरे, तो हम पहले यार इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं. तो हम पहले इसके लिए कर लेते हैं. लेट मी सेपरेट इट. हाँ, हम इसके लिए कर लेते हैं. तो dx ऑफ हम जीरो के लिए ऑपरेट कर रहे थे, राइट? सो लेट्स नेम द कन्वेंशन एज जीरो एंड इट वाज ऑड, राइट? तो इसके आरे में हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, हियर टॉप से स्टार्ट करते हैं. तो -1, and for its corresponding it will be 0. Then let's go for this point. So this is a, this is b, this is c, right? Just we'll write in this direction. So x coordinate is 0, right? And the y coordinate is -1. So x coordinate is again 0 for the cth point and y coordinate is +1. तो अब इसे कर लेते हैं d e f. So it is 2 comma 2 comma 2, 3 times 2 and 0 1 and 2. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा. Yeah, it is +1 +1 and +1. So it will be 1 comma 1 comma 1 and it will be like -1 0 and +1. So it will be -1 0 and +1. ठीक है यार. तो हमने ये डिराइव कर लिया ऑड के लिए, राइट? तो अब चलो इवन के लिए डिराइव कर लेते हैं. तो इवन के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप अगेन. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एंड एफ, राइट? और हमने इस एफ के लिए लिखा नहीं है क्या? हम इस एफ के लिए भी लिख देते हैं. So it will be what, I comma j plus 1. यार ये क्वेश्चन क्या ही है यार, इतना लेंदी, मतलब हमें यार कोऑर्डिनेट्स निकालने दे रखे हैं. तो अगर मतलब व्हेन यू आर मूविंग टू स्टेप्स उसमें तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट होगा यार. ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार इसका देख लेते हैं. ये मैं ड्राइविंग करके दिखा रहा हूँ, बाकी अगर लंबा होता है तो वी विल सी कि क्या कैसे करना है यार. ठीक है, तो तुरंत से यार इवन के लिए लिख लेते हैं. ये इवन आ रहे हो गया, राइट? तो हम कहाँ स्टार्ट कर रहे थे? सो -1 एंड द कोरस्पॉन्डिंग j विल बी 0.
and this will be -1 comma -1, right? Hmm. Then again, if you go to the C point, so it will be -1, it will be +1. You go to the D point, it is 0, then it is -1. We go to the E point, that is +1 and 0. We go to the F point, that is 0 and +1. ठीक है यार, तो हमारे पास जब टी वाई इक्वल्स टू 0 है, व्हेन दी अवंतिका इज द डायरेक्टर, तो हमारे पास dx और dy का ये array हो गया, एंड वी जस्ट हैव टू व्हाट फाइंड द आंसर। तो पहले यार चलो इतना कोड कर लेते हैं यार, बाकी उसके बाद देखा जाएगा कि टी वाई इक्वल्स टू 1 है तो क्या कर सकते हैं। ओके 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 ओके। या फिर देख ही लें क्या, कोड एक साथ ही कर लेंगे, देख लेते हैं। तो मैंने पहले से यार वो मैं एक बार वापस से, ये क्या हॉटस्कॉच था ना, हॉटस्कॉच, उसका मैं टेस्ट केस लेके आता हूँ। ठीक है यार, तो व्हेन जब हमारे पास टी वाई इक्वल्स टू 1 रहेगा, देन वी हैव टू टेक 2 स्टेप्स, राइट? टी वाई इक्वल्स टू 1, देन आकृति वाज लाइक लीडर, है ना, डायरेक्टर जो भी है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, वी वर लेट्स से सपोज एट दिस पॉइंट, राइट? So at the first step we can move in all the direction, right? One, it will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? And अब ये फर्स्ट स्टेप था, राइट? तो फर्स्ट स्टेप के बाद ये पॉइंटर जो है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है यार? ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, राइट? And this can go here and this can go here. This can go here, this can go here, right? This pointer can point to this cell and as well as point to this cell. And this will point to this cell and this will point to as well as point to the another cell, because two steps consider, right? तो ये यहाँ point कर सकता है और ये यहाँ point कर सकता है। तो if we count the total red pointers, total red, ये 12 coordinates है यार। लाइक इनके लिए भाई हमें अब dx जब 1 हो तो हम एक odd array बनाएंगे, राइट? dx 1 even odd dy बनाएंगे, राइट? इसमें क्या 12 पॉइंट्स होंगे यार। तो भाई भाई साहब, मतलब मैं अब अगर रन करने लगा तो 20 मिनट तो ये निकल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ एंड मैं कोऑर्डिनेट्स को लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक आप भी वीडियो पॉज करके कोऑर्डिनेट्स को फिगर आउट करो, ठीक है? तो मैं तो फॉर दिस सेकेंड केस आई नीड डी एक्स 1, राइट? तो दिस इज व्हेन y इज ऑड, राइट? हमने देखा था कि y इज ऑड, राइट? एंड दिस इज फॉर y इज इवन। हमने देखा था यार कि क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हम एक पॉइंट पे थे यहाँ पर 1 1 पे, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे 6 डायरेक्शन के, एंड जैसे ही एक ऊपर वाले को देखा तो 6 डायरेक्शन डिफरेंट कोऑर्डिनेट आ रहे थे। तो ठीक है यार, देख लेते हैं। देख लेते हैं, तो हमें निकालना होगा 1e एंड डी वाई 1e इवन केस के लिए क्या होता है। तो मैं इसको तुरंत से निकालता हूँ यार, वीडियो पॉज करता हूँ और मैं यहाँ पे फिल करके आता हूँ एरे, फिर विल कोड इट। ठीक है यार, तो मैंने वीडियो पॉज करके एरे फिल किया, बहुत समय लगा यार। इट टुक मी अराउंड मोर देन 15 मिनट्स टू फाइंड दीज कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब तुरंत से अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ से सब कुछ हैंडल हो जाएगा अब। ठीक है, सो लेट्स डिसाइड द स्टेप्स। कि हमारा स्टेप 1 तो यार ये होगा कि वी विल मेक अ सम वेरिएबल, लेट्स से सम और आंसर, राइट? स्टेप 2 हमारा होगा dx एरे फॉर दी जीरोथ केस। स्टेप 2 हमारा होगा ये वाला केस, एंड वी विल जस्ट हैंडल इट, राइट? वाह, चलो इसको करते हैं तुरंत से। तो ओके, so let's make a variable int sum is equals to 0, right? और हमें इसके बाद क्या करना है, हमें बनाना है एक dx array for the case when the ty is equals to 0, है ना? एंड हम पहले कौन सा केस कोड कर लेते हैं, हम पहले E1 वाला कोड, dx 0e, ठीक है? यहाँ पे कुछ होगा, देन हमारा होगा व्हाट, int dx 0 dy 0e, राइट? तो इसमें वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं यार, जो मैंने अभी पेंट से डिसाइड किया था, राइट? तो वैल्यूज़ क्या क्या थी, 0e के लिए, 0e के लिए ये वाली वैल्यूज़ थी, राइट? तो -1, 3 टाइम्स -1 0 1 0, सो लेट्स फिल इट, टाइम्स -1 0 0 1 0, राइट?
ठीक है यार, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ क्या थी इसकी, dy की वैल्यूज़ क्या थी? 0 -1 -1 -1 0। ओके, 0 -1 1 एंड -1 0 एंड 1। ठीक है, तो मैं पूरा एरे बनाता हूँ यार, ये इस एरे को कोड करने में मेरे को 2-3 मिनट लग जाएंगे। मैं तुरंत से एरे को कोड कर लेता हूँ। बहुत ही हेक्टिक हो रहा है यार। ये कैसा क्वेश्चन दिया जीओजी वालों ने यार, यही कराना था तो। ठीक है यार, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ यार, मतलब बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ओके, सो हमें ज़ीरो और ऑड वाले को हैंडल करना है। ऑड वाले के लिए हम हैंडल कर लेते हैं। सो इट वाज -1 0 0 1 1 1, राइट? 6 पॉइंट्स थे। देन वी हैव टू हैंडल dy 0 एंड दिस द ऑड केस। तो यहाँ पे क्या था यार, 0 -1 1 0 -1 1 1 एंड -1 0 एंड 1। ठीक है, सिमिलरली मैं यार dy मैं जब टी वाई इक्वल्स टू 1 होता है तो मैं उसके लिए सारे 12 पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैं लिख के वीडियो ऑन करता हूँ। ठीक है यार, तो ये मैंने पेंट से उठा के जो मैंने लिखा था, जो आपको मैंने टास्क दिया था सॉल्व करने के लिए, ये मैंने कर लिया। क्योंकि मैं इसका नहीं दिखाऊंगा यार, क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लग रही, कोई भी लॉजिक नहीं इसमें। आपको बस आई एजेंस से सारे 12 पॉइंट्स को ट्रेवर्स करके निकालना है कि कैसे होता है। एंड आई हैव डन दिस फॉर यू फॉर द 6 पॉइंट्स। तो ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड यार। अभी भी लाइक मेरे को बहुत कोड अभी करना होगा। So let's handle the cases now. So if ty is equals to 0, right? So we will what? Iterate in our this array dx of what? तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि यार अपना y कोऑर्डिनेट इवन ऑड है या इवन, राइट? हम क्यों चेक कर रहे थे? बिकॉज zigzag स्ट्रक्चर में था और हमने देखा कि अगर हम एक सेल को ले रहे हैं और उसके अबव वाले सेल को ले रहे हैं, तो उनके लिए जो 6 ट्रैवर्सल का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो रहा था, राइट? तो इसलिए हम ये चीज़ करेंगे। और मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया है, जे एंड के लिखा है, क्योंकि मैं आई एन जे फॉर लूप के लिए इस्तेमाल करता हूँ यूजुअली। तो ठीक है, सो इफ k% 2 is not equals to 0, right? So then we will take the dx 0 odd वाला case, right? So length I plus plus, right? And what we have to do, we have to find the new x coordinate that is equals to dx of 0 o and I plus the given coordinate is the given x coordinate is j, and int n y is equals to dx what? 0 हम ऑड वाला कंसिडर कर रहे थे, प्लस के मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ, एंड प्लस दी वाई कोऑर्डिनेट, राइट? प्लस दी वाई कोऑर्डिनेट। सो वी हैव गॉट दी न्यू एक्स कोऑर्डिनेट एंड न्यू वाई कोऑर्डिनेट। नाउ वी जस्ट हैव टू चेक कि ये आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, राइट? इफ द ट्रैवर्सल पॉइंट्स आर नॉट आउट ऑफ बाउंड, देन वी विल टेक द मैट्रिक्स ऑफ दोज पोजिशंस एज एन आंसर, राइट? सो मैं चेक कर लेता हूँ इफ एन एक्स जो है n score x should be greater than equals to 0, and an n score x should be less than equals to 1, and an n score y should be greater than equals to 0, and an n score what y should be less than m. Okay, तो ये चीज़ हैंडल हो गई है। और अगर ऐसा है then we will include in our answer sum, तो sum plus equals to matrix of n x and n y। ठीक है यार, तो ठीक है, ये हो गया। एंड एल्स केस में, एल्स केस अब हम लिख लेंगे यहाँ पे। मैं ऊपर से ही सेम कोड यार कॉपी करूँगा, मैं बस वहाँ पे एरे को चेंज कर दूंगा। एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस 4 एरेज अबव, राइट? तो हम यहाँ पे डी एक्स ओ ई में ट्रैवर्स करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स ओ ई में ट्रैवर्स करेंगे, डी एक्स 0 ई में ट्रैवर्स करेंगे। रेस्ट ऑल द कंस्ट्रेंट विल बी सेम, वी आर जस्ट चेकिंग इफ इट इज़ आउट ऑफ बाउंड और नॉट, राइट? तो ठीक है यार, तो ये हमारा हो गया इफ टी वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट? एक एल्स केस होगा व्हेन टी वाई इज इक्वल्स टू 1। तो लेट्स मेक दैट केस ऑल्सो।
तो इस केस में क्या होगा यार, ये सेम चीज़ अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड आई विल जस्ट चेंज दी पैरामीटर्स ऑफ dx1e102. हाँ, तो if k%2 is 0 then we have to take dx10, right? Dx10 and here also dx10. Rest all will remain same. Similarly here dx1e, 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 and that's everything remains same. And at last we just have to return the sum. ये कोड बहुत ही लंबा और बहुत ही पेचीदा है यार खास करके जब ये सारे 12 पॉइंट्स मेरे को कैलकुलेट करने लग गए थे, लाइक 12 इंटू 12 24 36 48 पॉइंट्स, बहुत ही हेक्टिक था सो लेट्स कंपाइल एंड रन, हम देखें यार कि हमारा ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड इट्स करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो कहीं तो हमने गलती कर दी है किसी पॉइंट्स को मेंशन करने में, तभी हमारा ये ऐसा आंसर आ रहा है। सो लेट मी जस्ट रीचेक राइट। So if ty is equals to 0, we were taking, and if it's odd, then we were taking the odd array. Seems correct to me. And we were taking the even array here. So else if ty is equals to 1, and if k is again 0, then we were taking the odd array. And then we were taking the, okay, I got one mistake. Okay. मैं यहाँ पे हर जगह dx लिख दिया और मैंने कॉपी करके सब जगह वही कर दिया गलती। Okay, so we are taking the y coordinate, right? So we have to take the dy array, right? So here also it will be dy. Let's compile and run. ओके फैंटास्टिक यार, ये चल गया है। तो ये बस मेन यही था यार कि हमें 6 डायरेक्शंस और 12 डायरेक्शंस के हमें वो लेके आने थे, क्या बोलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो एक बार इसको टी वाई इक्वल्स टू 1 है तो उसके लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, लेट्स कंपाइल एंड रन। ठीक है, so it comes correct, right? So now it's time to hit the submit button. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार जब तक ये सबमिट हो रहा है? आई कैन शो यू व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर। तो हम क्या कर रहे हैं यार, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं ओ ऑफ 6 इन प्लस 6, राइट? हम मतलब कांस्टेंट स्पेस ही यूज़ कर रहे हैं यार। यहाँ पे हमने 36 6 was 24, o of 24 plus o of 48, so let's say o of 100 हमने यूज़ किया, दैट इज कांस्टेंट, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी will be o of 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार वी आर जस्ट इटरेटिंग इनटू dx array and dy array, so that will be like constant, so time and space complexity o of 1 होगा। and let me just give you a code walk through, हमने किया क्या यार, बस we have to do just one time, one step at a time, so we just calculated all the 6 steps coordinates from a point where where in the question that point was given, this point I and j, right? I replace it with the coordinates j and k, and we traverse to all the 6 points, right? And since the figure given was in a hopscotch, not a complete true matrix, not so the rows and columns were up and down, so we observed that कि एक सेल से हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसके जस्ट अबव सेल से फॉर्म करेंगे, सो द डायरेक्शंस आर कमिंग डिफरेंट, राइट? So we calculated all the 6 directions for the director which has to just move one step. Then we calculated all the 12 possible ways. I already showed you in the diagram that there will be 12 possible cells. So we calculated the I and jth value for those cells, and we iterated in the array, and we just handle some if cases that if ti is equals to 1, then the steps we followed as mentioned in the question, and if ty is equals to 1, then we traverse in all the 12 directions, and at last we return this sum, right? Okay, so that's it for all the for this video। और ये क्वेश्चन यार फालतू का क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्यों दिया था। आई विल नॉट रिकमेंड यू सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हमें बस स्ट्रीक मेंटेन करनी है तो मैंने क्वेश्चन किया, नहीं तो मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं करता यार, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं कल के पीओटी स्ट्रीक में। कल मैं होप कर रहा हूँ बेटर क्वेश्चन होगा। कल के पीओटी स्ट्रीक में मिलते हैं डे 57 में। तब तक के लिए यार लास्ट की कुछ बातें, दैट दिस इज माय डीएसआर रिपोजिटरी, यू कैन स्टार्ट एंड फोक दिस रिपोजिटरी, you get it with the source code as well as the syllabus mentioned down in the readme section। and if you are new to this channel यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियोस यार ये वीडियो तो मैं आज बिल्कुल नहीं बनाता, तो ठीक है यार, हम अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें और सीखते रहें। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक में डे 58 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो यार।